Hi, good evening. Welcome to the second lecture beta of macroeconomics. In the last class, we had already gone ahead and we had talked about the initial aspects. So we talked about what is unemployment, what is employment rate. Beta, यहाँ पर एक point I had missed. Please write that down. It can come in exam, which is the participation rate. ठीक है? तो वो please लिख लो एक बारी. यहाँ पर कहीं पे ना इधर ही where we talked about this diagram, please write that down. So we talked about unemployment rate, but यहाँ पे participation rate भी हमें लिखना चाहिए. So participation rate is that rate which tells us how many people participate in the workforce. So it is nothing but labor force by population. Okay, so that gives you the participation rate. It's an important aspect that you should be keeping in your mind. So please write down upon non-institutional civilian population. तो जो लोग भी काम कर सकते हैं वो कितने हैं और जो काम कर रहे हैं वो कितने हैं, उसका जो रेशियो होता है उसको हम बोलते हैं बेटा पार्टिसिपेशन रेट. दैट मींस इफ आई गो बाय दिस डायग्राम, दिस वाज माय लेबर फोर्स and this was all the people who could work. So this divided by this, that is called as participation rate. I hope this is clear to you. Okay, let us continue the session today. So I'm going to start with the new lecture. Beta, please give the heading as wage determination. Okay, beta, wage determination में we had already gone ahead and talked about collective bargaining. उसकी हम बात कर रहे थे last lecture में कि collective bargaining क्या होती है. Today I want to go ahead and I want to start by talking about two factors which are used in wage determination. पहले समझ लो फिर लिखेंगे. सबसे पहले बेटा you have to understand something which is called as reservation wage. हर इंसान की एक वेज होती है, एक मिनिमम वेज होती है जिससे नीचे वो कभी काम नहीं करता. जैसे इफ यू आस्क मी, मैम यू वांट टू डिलीवर दिस लेक्चर, हाउ मच विल यू चार्ज पर आवर? एंड आई टेल यू बेटा आई विल टेक maybe 1,000 rupees per hour. It means that I will not work below 1,000 rupees. That is my reservation wage. So बेटा reservation wage क्या है? वो वेज जिसके नीचे आप काम नहीं करोगे, that is reservation wage. मैं 1,000 से नीचे में काम नहीं करूंगी. That's my reservation. Then it is also defined as the wage at which you are indifferent between working and not working. माने अगर वेज 1,000 है तो उस पे मैं कर भी सकती हूँ, नहीं भी कर सकती हूँ. I am indifferent between the two. अगर वेज 1,000 से नीचे है then I will not work. अगर वेज 1,000 से ऊपर है I will definitely work, right? So reservation wage से ऊपर वेज होने पे एक वर्कर हमेशा काम करेगा ही करेगा. That's the first thing that we should keep in mind. We will write it, don't worry. Second, wages जो होती हैं वो लेबर मार्केट कंडीशन पे भी बहुत ज्यादा डिपेंडेंट होती हैं. मतलब बेटा अगर अनएम्प्लॉयमेंट मार्केट में बहुत ज्यादा है, किसी के पास भी जॉब नहीं है, nobody has a job, तो उस केस में लोग बहुत सस्ते में काम करेंगे. People will be ready to work at a very less wage. In that case, the wage that will exist in the market will be low because people are willing to work at a lower wage. But beta, if the wages, if the unemployment rate is low, सबके पास नौकरियां हैं, कोई भी अनएम्प्लॉयड ही नहीं है, तो अगर मुझे उस टाइम पे किसी को जॉब पे रखना है तो मुझे उसे ज्यादा पैसा देना पड़ेगा. क्यों? क्योंकि अब उसके जिसको मैं रख रही हूं उसके पास बहुत सारी जॉब ऑफर्स है और कोई भी उसका सब्स्टिट्यूट अवेलेबल ही नहीं है मार्केट में, राइट? सो वी कैन से दैट
जो भी हमारी वेज डिटर्मिनेशन होती है उसमें दो फैक्ट्स बहुत इंपॉर्टेंट स्टैंड आउट करते हैं. सो वी विल स्टार्ट आवर लेक्चर विद दैट टुडे. सो प्लीज राइट डाउन. देयर आर two factors that stand out in case of wage determination. बेटा पहला फैक्टर क्या बताया मैंने? रिजर्वेशन वेज. सो प्लीज राइट डाउन द डेफिनेशन फर्स्ट. रिजर्वेशन वेज. ये क्या है बेटा? द वेज at which an individual is indifferent between working and not working is called reservation wage. तो बेटा जिस वेज पे एक इंडिविजुअल इंडिफरेंट है काम करने और ना करने के बीच में, उसे हम रिजर्वेशन वेज बोलते हैं. प्लीज राइट डाउन. मोस्ट employers will pay a wage greater than reservation wage. तो ज्यादातर जितने भी एम्प्लॉयर्स होते हैं वो रिजर्वेशन वेज के ऊपर पैसा देते हैं. अब वो क्यों देते हैं वो हम बाद में समझेंगे, आज ही समझेंगे, थोड़ी देर बाद में, बट समझेंगे. ठीक है. अच्छा, अब सेकंड पॉइंट हमने क्या बोला बेटा? सेकंड पॉइंट हमने बोला लेबर मार्केट कंडीशन. इसको भी मैं इलैबोरेट थोड़ी सी देर में करूंगी, बट अभी के लिए अंडर लेबर मार्केट कंडीशन एक चीज लिख लो, दैट द लोअर द अनएम्प्लॉयमेंट, जितने कम लोग अनएम्प्लॉयड होंगे, मार्केट में ज्यादा लेबर्स नहीं होंगे, उतनी ज्यादा वेज देनी पड़ेगी. द हायर द वेज. ओके बेटा, तो ये दो चीजें हमने यहां पे लिख ली हैं. अब इसी को हम इलैबोरेट करते हैं और इसमें हम एक सब पॉइंट लिखते हैं विच इज कॉल्ड बार्गेनिंग. ठीक है बेटा, अब समझो. बेटा बार्गेनिंग क्या होता है? बार्गेनिंग पावर वो पावर है जो बताता है कि वर्कर्स जब एम्प्लॉयर से सैलरी मांग रहे हैं तो वो कितनी सैलरी मांग पाएंगे, कितनी वेज मांग पाएंगे. ये जो बार्गेनिंग पावर है ये दो फैक्टर्स से डिपेंडेंट होती है. ठीक है. पहली डिपेंडेंट होती है नेचर ऑफ जॉब पे और दूसरी डिपेंडेंट होती है लेबर मार्केट कंडीशन पे. नेचर ऑफ जॉब समझो. नेचर ऑफ जॉब ये कहता है कि आप जिस काम में लगे हुए हो वो काम कैसा है. अगर आपका काम, जैसे मैंने लास्ट टाइम भी एक एग्जांपल दिया था, कि अगर आपके काम में बहुत ज्यादा स्किल्स की जरूरत नहीं है, जैसे अगर मैं मैकडॉनल्ड्स में सर्व कर रही हूँ फूड, आई डोंट नीड अ लॉट ऑफ स्किल्स, तो बेटा उस केस में मैं बहुत ज्यादा बार्गेन नहीं कर सकती हूँ और मुझे कम वेज एक्सेप्ट करनी होगी. बट अगर मैं सीईओ हूं किसी कंपनी की तो मैं कितनी भी वेज मांग सकती हूँ और मेरी बार्गेनिंग पावर बहुत हाई होगी. सो फर्स्ट फैक्टर जिसपे बार्गेनिंग पावर डिपेंड करती है वो है आपका स्किल सेट. बेटा सेकंड फैक्टर जिसपे बार्गेनिंग पावर डिपेंड करती है वो है लेबर मार्केट कंडीशन. ठीक है. ये वाला चीज जो हमने बोला ना, इसी को हम इलैबोरेट करेंगे. तो सेकंड फैक्टर हो गया लेबर मार्केट कंडीशन. तो बेटा प्लीज राइट डाउन द बार्गेनिंग पावर of the worker depends on
two main factors. ओके बेटा, तो आपका पहला फैक्टर क्या हो गया? फर्स्ट फैक्टर इज हाउ मच, नहीं डायरेक्टली लिख लो, सॉरी, फर्स्ट फैक्टर इज नेचर ऑफ द जॉब. ठीक है बेटा, सो नेचर ऑफ जॉब क्या हो गया? इफ द रिक्वायर्ड स्किल सेट for the job are not very high, बहुत बेसिक स्किल सेट चाहिए, उस जॉब को कोई भी कर सकता है अगर, है ना. सो एंड यू हैव लार्ज नंबर ऑफ एप्लीकेंट्स फॉर द जॉब. बेटा प्लीज समझो, एक एस्ट्रोनॉट को या किसी भी एक साइंटिस्ट बनने के लिए बहुत ज्यादा एप्लीकेशंस नहीं होंगी उस जॉब के लिए, बट शायद एक लो स्किल जॉब के लिए बहुत ज्यादा एप्लीकेशंस इजीली आ जाएंगी, है ना. सो वी आर सेइंग दैट अगर आपका जो स्किल सेट चाहिए जॉब करने के लिए वो बहुत ज्यादा हाई नहीं है और बहुत ज्यादा एप्लीकेंट्स हैं उस जॉब को भरने के लिए, यू हैव अ लार्ज नंबर ऑफ एप्लीकेंट्स टू फिल आउट द जॉब, ठीक है, for the job, then the wage offered will be low. तो उस केस में आपको कम पैसा मिलेगा, ठीक है. बट इसके कॉन्ट्रास्ट में अगर आपकी जॉब बहुत हाई स्किल्ड है और आपको रिप्लेस करना इतना आसान नहीं है, आप जो आपको चीज आती है वो और कोई नहीं कर सकता आपके फर्म में, तो बेटा फिर आपकी बार्गेनिंग पावर हाई रहेगी. So in contrast, if the job requires high skills and it is difficult to replace the individual, then he or she will have high bargaining power. क्लियर हुआ ये? तो बार्गेनिंग पावर तब ज्यादा होगी जब आपकी जो नेचर ऑफ जॉब है वो हाई स्किल्ड है. बेटा सेकेंड पॉइंट लिखो. सेकेंड पॉइंट इसमें आता है बेसिकली अनएम्प्लॉयमेंट रिलेटेड, सो लेबर मार्केट कंडीशन रिलेटेड. सो सेकेंड पॉइंट हो गया लेबर मार्केट कंडीशन. ठीक है बेटा. बेटा लेबर मार्केट कंडीशन का सेम है. अगर मैं सपोज इमेजिन करो आप एक जगह पे इंटरव्यू देने गए, वहां पर लाइन है, बहुत लंबी लाइन इंटरव्यू देने वाले लोगों की, तो बेटा आप कम पैसा मांगोगे, आप कम वेज में काम कर लोगे. बट आप एक जगह इंटरव्यू देने गए और आपको दिखता है कि आसपास रिसेप्शन में कोई नहीं बैठा हुआ, यू आर द ओनली वन सिटिंग फॉर द जॉब, देन यू विल आस्क हाई वेज, राइट. सो लेबर मार्केट कंडीशन बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं. सो प्लीज राइट दिस डाउन दैट इफ देयर इज हाई अनएम्प्लॉयमेंट इन द इकोनॉमी, हाई अनएम्प्लॉयमेंट मीन्स बहुत सारे लोग हैं जिनके पास जॉब नहीं है, देन देयर विल बी हाई कंपटीशन. और बेटा अगर कंपटीशन ज्यादा होगा, implying that you have to work for low wages, implying lower bargaining power. So if there is high unemployment in the economy, there will be high competition, which will imply low bargaining power and thus lower wages. ठीक है बेटा. बट अगर अनएम्प्लॉयमेंट रेट लो है
तो फर्म्स को इजीली कोई रिप्लेसमेंट नहीं मिलेगी। और अगर अनएम्प्लॉयमेंट रेट लो है, मतलब जॉब्स तो बहुत है, नौकरियां बहुत हैं, पर लोग अनएम्प्लॉयड नहीं है, तो वर्कर इजीली नई जॉब ढूंढ सकता है, फर्म इजीली वर्कर नहीं ढूंढ सकता, तो फर्म हाई वेज ऑफर करेगा। सो प्लीज राइट डाउन ऑन द कॉन्ट्रेरी, if there is low unemployment, then it is more difficult to find acceptable replacement worker and workers can easily find a new job. So bargaining power will be high. I hope this is clear बेटा। तो हमने 2 पॉइंट्स लिखे हैं बार्गेनिंग पावर से रिलेटेड। पहला हमने लिखा है कि नेचर ऑफ जॉब क्या है, और दूसरा हमने इस चीज पे हाईलाइट किया है कि लेबर मार्केट कंडीशन क्या है।